So this is chapter number 4, moving charges and magnetism. We have discussed about the magnetic effects of electric current in the previous lecture. Now we have discussed about Biot-Savart law and the application of Biot-Savart law. Right, beta? All of you just pay attention. So we find the magnetic field in case of a straight current carrying conductor. है ना? Straight finite wire and infinite wire. In case of a finite wire, what is a magnetic field? In case of finite wire, the magnetic field B is equals to mu naught I upon 4 pi a sine phi 1 plus sine phi 2. This is a magnetic field. This is the application of Biot-Savart law in case of a finite wire. In finite wire, if we put theta is equals to phi 1 and phi 2 is equals to 90 degree, then it is equals to mu naught I upon 2 pi a. In this case, the magnetic field, we have to find the magnetic field due to the straight current carrying conductor. It is infinite wire and in the middle of the wire. Okay? And so this is case of infinite long wire. And also there is another case, ends. At the ends, if we have to find the magnetic field due to infinite long wire. So there is one case of finite sine phi 1 plus sine phi 2 and two cases of infinite long wire. So this we have already discussed. Now there is a numerical. A straight wire carries a current of 3 ampere. Solve it, beta. Jaten, current is 3 amperes. Calculate the magnitude of the magnetic field at a point 10 centimeter away from the wire. ठीक है? This is a long straight wire. There is a point R which is 10 centimeter away from this wire. So we have to find the magnitude of the magnetic field at this point. Okay? So it is 10 centimeter. That means 10 raised to power minus 2 meter. 10 into 10 raised to power. Okay? Minus 2 meter. Okay, bete? So now put the value. We have to find the magnetic field now. So it is a long straight wire. In the middle, we have to find the magnetic field. So what is the formula? It's mu naught I upon 2 pi r. Put all the values. What is the value of mu naught? If we multiply with 2 and divide with 2, ठीक है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 पाई बन जाएगा. इट्स योर ऑन विश कि आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हो या फिर सीधा म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर दो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट? 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर minus 7 into current is 3 amperes upon 2 pi, ठीक है, into R. R is 10 into 10 raised to the power minus 2. ठीक है, या आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते तो सीधा 10 raised to power minus 2 आ जाता, वैल्यू नहीं पुट करनी पड़ती. इट्स बिंग 2. ठीक है, so magnetic field is equals to 6 into here minus 1, it goes up 10 raised to the power minus 6 Tesla. So this is a magnetic field. ठीक है, this is how we can find the magnetic field in a straight wire if the R is in the middle of the wire. ठीक है ना, infinite long wire है, अगर middle का केस है so we use this formula mu naught I upon 2 pi r. अगर एंड्स की बात हो रही होती, इनफाइनाइट वायर होती, तो व्हाट फॉर्मूला वी गोना टू यूज? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप या एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर, सर्कुलर कंडक्टर. अभी हमारे पास यहाँ पे सर्कुलर कंडक्टर है. ठीक है, दिस इज अ सर्कुलर कंडक्टर जहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है इन दिस लूप having r radius. The current is, suppose current is flowing clockwise. ठीक है,
So what are the different laws or rules which are used to determine the direction of magnetic field? राइट हैंड थंब रूल या फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. वैसे तो स्क्रू रूल भी होता है, पाम रूल भी होता है, बट ओनली यूज टू. ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा यूज करोगे गेट कंफ्यूज्ड. सो इफ यू यूज द राइट हैंड थंब रूल, इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज दिस, देन मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स. ठीक है, इनटू द पेज या इनटू द स्क्रीन. सो कंसीडर a circular current carrying loop with radius r. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड्स, अंदर की तरफ है. द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स. सो यूजिंग Biot-Savart law, what is the magnetic field? dB is equals to mu naught I dl sin theta over r square, mu naught by 4 pi I dl sin theta over r square. ठीक है, if we took consider about द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कोयल, तो सेंटर में साइन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक है, अगर हम यहाँ से आर की वैल्यू ले रहे हैं, डीएल यहाँ ले रहे हैं, तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. सो डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 डिग्री ओवर आर स्क्वायर. Sin 90 degree is equals to 1. ठीक है, now we integrate this. B mu naught upon 4 pi constant, it comes out. R square also comes out. I also comes out. Integral of dl. ठीक है, in case of circular loop, the integration of dl कितना होगा, उसकी लेंथ यानी कि circumference of the circle, that is equals to 2 pi r. ठीक है, सर्कुलर लूप का सर्कमफ्रेंस कितना होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वी कैन पुट 2 पाई ए, 2 पाई आर इफ आर इज अ रेडियस. सो बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, इट विल बी कैंसिल आउट. ठीक है, यहाँ पे 2 रहेगा और एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा. सो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड in case of at the center of circular coil carrying current, circular coil या circular loop carrying current. how you remember बेटे कि सर्कुलर कोयल के सेंटर की अगर हम बात करें तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा. दिस इज अ सर्कुलर कोयल. ठीक है, करंट आई फ्लोज थ्रू इट. इफ वी टुक द डायमीटर, अगर आर रेडियस है तो डायमीटर कितना हुआ, 2r. सो म्यू नॉट आई अपॉन 2r. दिस इज हाउ यू रिमेंबर कि सेंटर का मतलब डायमीटर सेंटर से होके पास होता है, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर में, म्यू नॉट आई अपॉन 2r. अभी हमने बात की थी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की. तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में वी हैव 3 केसेस. एक तो फाइनाइट का था जिसमें म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 था. सेकंड केस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, जब हमने 90 पुट कर दिया था फाई 1 और फाई 2 को. इसका मतलब इफ वी टॉक अबाउट द सेंटर ऑफ द इनफाइनाइट वायर, ठीक है, इनफाइनाइट वायर के सेंटर में बात कर रहे थे, तो सेंटर में कितना होगा भाई, ट्वाइस डायमीटर पर वहां पे पाई भी होगा इंक्लूड, क्योंकि वो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है. तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. और एंड्स की अगर बात करोगे सो एक फाई 1 को 90 पुट करोगे, फाई 2 को 0 डिग्री रहने दोगे. सो व्हाट इज द वैल्यू एट द टाइम, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर. सो दीज आर द 4 formulas till now which are used to find the magnetic field at a point. ठीक है ना, which one, कौन कौन से हुए हैं. नंबर 1 कौन सा था, मैग्नेटिक फील्ड फॉर द फाइनाइट वायर. ठीक है, कितना था बेटे,
B is equals to mu naught I upon 4 pi r sin phi 1 plus sin phi 2. Next, for infinite wire, but the case is at the middle, ठीक है, मिडल में या सेंटर में of straight wire, finite wire, that means we talk about the straight current carrying conductor, straight current, yes, straight current carrying conductor we have. So in case of infinite wire, magnetic field कितना था मानसी, म्यू नॉट आई अपॉन मिडल में कितना था, इट्स 2 पाई आर. कैसे आया था, 90 90 इनको पुट कर दिया था, साइन 90 पे 1, ये भी 90 पे 1, 1 प्लस 1 2, सो यहाँ से 2 से ये वाला कैंसिल आउट हो गया था, इट्स मीन 2 पाई आर. ठीक है. थर्ड केस, ये भी फाइनाइट इनफाइनाइट वायर का है. फॉर इनफाइनाइट वायर यू हैव टू लर्न ऑल दीज फॉर्मूलाज. ठीक है. But at the ends, if we talk about at the ends, so magnetic field कितना था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर. इसमें हम phi 1 को 90 पुट करेंगे, उसको एज इट इज रहने देंगे. ठीक है. तो ये 1 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा. सो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर. फोर्थ केस, फॉर सर्कुलर कोयल या सर्कुलर लूप आ जाए. ठीक है. सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, अगर सर्कुलर लूप है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एट द सेंटर. सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बेटे, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r. ठीक है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2r. सो दीज आर द 4 formulas which we have discussed till here. Next we have find the magnetic field at the axis of a circular loop या circular current carrying conductor. ठीक है. We have a circular current carrying conductor DL या having L length. DL is a small element. Muskan, right? So this circular loop having a radius, take a point P which is r distance apart from the center. So we have to find the magnetic field due to the axis. ठीक है. जो सर्कुलर कोयल है उसके एक्सिस से जो DL है हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, ड्यू टू दिस DL कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा एट दिस पॉइंट. ठीक है. सो वी टुक द डिस्टेंस S, यहां से दिस इज एंगल 90 डिग्री. ठीक है. सो दिस इज 90 डिग्री एंगल, this is perpendicular A, this is R, took this phi, this also phi. अब हम यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, एक्सिस हमारा ऊपर भी है नीचे भी है. ठीक है. सो दोनों हम कंसिडर कर सकते हैं. अंडरस्टूड ना बेटे. सो अगर हम यहाँ वाला एक्सिस ले रहे हैं, DL यहाँ ले रहे हैं, तो एक DL यहाँ पे भी होगा, यहाँ से भी S पॉइंट, यहाँ से भी S पॉइंट, क्योंकि ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है. वी कैन फाइंड द दिस डिस्टेंस एज हाइपोटेनियस. तो हाइपोटेनियस कितनी आएगी, S इज इक्वल्स टू कितना होगा, इट्स रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. ठीक है ना. R क्या है, सेंटर से डिस्टेंस है 2 पॉइंट P. इस पॉइंट पे इस एक्सिस या इस करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एट दिस पॉइंट. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, dB. इस एक्सिस की वजह से भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, दिस dB. ठीक है ना. एक ये dB हो गया, एक ये dB हो गया, हैविंग phi एंगल. So these dBs get resolved, rectangular resolution होगा इनका. ये जो dB होंगे दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व हो जाएंगे, dB sin phi एंड dB cos phi. ठीक है ना. इस वाले करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से dB ये था, ये दो में रिजोल्व हो गया, एक साइन कंपोनेंट और एक cos कंपोनेंट. इसी तरीके से नीचे वाला जो dB था, इट इज ऑल्सो रिजोल्व टू 2 कंपोनेंट्स, cos dB cos phi एंड dB sin phi. ठीक है. जो दोनों के cos कंपोनेंट हैं, दे हैविंग सेम डायरेक्शन, क्योंकि देखो डिस्टेंस सेम है ना, डिस्टेंस नीचे सेम है ना, R सेम है, करंट भी सेम फ्लो कर रहा है. सो दोनों के जो cos कंपोनेंट है दे मे बी कैंसिल आउट. ठीक है ना. cos यू हैव टू राइट ऑल द थिंग्स कि
consider a current carrying conductor I, circular loop having a radius. We have to take a point R from the center where we have to find the magnetic field. So dB is resolved into two components. ठीक है, dB is resolved into two components. Which one? dB cos phi and dB sin phi. ठीक है, dB cos phi will cancel out. ठीक है बेटे, dB sin cos phi क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा. क्या बचेगा, सिर्फ dB. जितने भी यहाँ पे करंट कैरिंग एक्सिस होंगे, करंट कैरिंग एलिमेंट्स होंगे, उन सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो साइन कंपोनेंट है इट विल बी एडेड अप. ठीक है ना, सबके जो कॉस कंपोनेंट होंगे दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट वाई दे कैंसिल आउट. सिर्फ हमारे पास साइन कंपोनेंट बचेगा. सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग द बायट-सैविट लॉ? dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर. अब थीटा हमारे पास यहाँ पे क्या है, इट्स 90 डिग्री. ठीक है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड इंटीग्रेट दिस, what we have, dB इंटीग्रेट हो जाएगा. सो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई. ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा बेटे, कौन से कंपोनेंट्स हम ऐड ऑन कर रहे हैं, इट बिकम साइन 90 डिग्री. बट साथ में कौन सा कंपोनेंट ऐड ऑन हो रहा है, साइन फाई. तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, साइन फाई कंपोनेंट. ठीक है, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl का इंटीग्रेशन होगा. ठीक है, और dl इंटीग्रेशन, द इंटीग्रेशन ऑफ dl कितना होगा सर्कुलर के केस में, वी पुट द वैल्यू ऑफ सर्कुलर के केस में dl यानी कि पूरी लेंथ कितनी होगी, बाय वी कैन फाइंड बाय द सर्कमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई a. तो dl की जगह क्या आ जाएगा, 2 पाई a. साइन थीटा कितना हो गया, साइन 90 डिग्री 1. वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ साइन फाई. तो साइन फाई की वैल्यू क्या होगी, दिस इज फाई, इसके सामने परपेंडिकुलर a, सो a अपॉन दिस. ठीक है ना, अंडरस्टूड ना बेटे. यहाँ पे साइन 90 डिग्री हो गया, ये 1 हो गया. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और आर स्क्वायर बाहर आ जाएंगे. ठीक है, वी ऑल्सो पुट द वैल्यू ऑफ साइन फाई. सो आर स्क्वायर ऑल्सो आउट. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dl एंड साइन फाई. तो साइन फाई इज a अपॉन, इट्स a अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. इंटीग्रेशन ऑफ dl वी कैन पुट 2 पाई a. ठीक है, so 2 pi will be cancel out 2. ठीक है, we have the radius a. तो यहाँ पे भी हमारा a स्क्वायर आएगा, है ना, नहीं s स्क्वायर आएगा. डिस्टेंस तो हमारा s है ना, सो s यहाँ पे आएगा. ठीक है, इट विल बी s स्क्वायर. x dl से हमारा डिस्टेंस कौन सा है, s है ना बेटे, सो वी कैन पुट s ओवर हियर, दिस इज s स्क्वायर. ठीक है, और s को हम क्या लिख सकते हैं, s है कितना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s, रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर या r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. ठीक है ना, s कितना है, रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. द डिस्टेंस फ्रॉम, आई एम वॉचिंग एवरीवन, s is a distance from this current carrying element to this point p. तो जहां पे बायट-सैविट लॉ में नीचे डिस्टेंस स्क्वायर था, so we took this distance. स्क्वायर की वजह से this will be cancel out, रूट कैंसिल आउट. ठीक है ना, सो यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम s की वैल्यू पुट करें s स्क्वायर, सो इट विल बी
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना बेटे। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई, इट्स ए स्क्वायर, ऊपर ए स्क्वायर हो गया, दिस वन एंड दिस वन अपॉन 2, ये पावर 1 है, ये पावर हाफ है, 1 प्लस हाफ, इट्स आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट 3 बाय, पावर हो जाएगी 3/2, ठीक है, इट्स बीइंग 3/2, ठीक है, राइट। सो दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कोयल। हमने क्या किया, डीएल का इंटीग्रेशन किया और साथ में डीबी के जो साइन फाई कंपोनेंट थे दे गॉट इंटीग्रेटेड, उनका भी इंटीग्रेशन कर दिया। तो साइन फाई की वैल्यू कितनी आ गई, साइन फाई की वैल्यू कितनी आई, ए ओवर दिस यानी कि पावर हाफ, और डीएल का इंटीग्रेशन हो गया 2 पाई ए, पुट द ऑल द वैल्यूज, वी हैव टू फाइंड दिस मैग्नेटिक फील्ड। सो देयर आर सम स्पेशल केसेस, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होंगी तो n भी मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ में, इफ वी हैव n नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। सो फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर ओवर 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है। सो दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड। सो देयर आर सम स्पेशल केसेस फॉर इट। इफ वी टॉक अबाउट एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर, तो सेंटर पे ये डिस्टेंस जो है r डिस्टेंस 0 हो जाता है। अगर हम यहाँ की बात करेंगे इसका मतलब ये P पॉइंट यही होगा सेंटर पे ही, तो r इज इक्वल्स टू 0 है ना बेटे। अगर हम सेंटर पे ही मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे इसका मतलब हमारा ये P पॉइंट यहीं आ जाए, तो ये तो r डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो व्हाट हैपन इन दिस केस, r इज इक्वल्स टू 0, तो r को हमने 0 पुट कर दिया, ठीक है। इन दिस इक्वेशन अगर हम r को 0 पुट कर दें तो ये r एंड अप a स्क्वायर, बाहर पावर है 3/2, 2 विल बी कैंसिल आउट विद दिस 2, क्या बचेगा नीचे 2a स्क्वायर, ठीक है ना। तो नीचे बचेगा 2a स्क्वायर, ऊपर है म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर ओवर 2a क्यूब है, मतलब a स्क्वायर से a स्क्वायर, स्क्वायर से जो पावर थी वो कैंसिल आउट हो गई, ओनली वी हैव क्यूब, सो 2a क्यूब, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पे यहाँ से ये स्क्वायर से इसमें से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, व्हाट वी हैव लेफ्ट म्यू नॉट एन आई ओवर 2a, यही तो था ना हमारा सर्कुलर का। सेंटर के केस में क्या था, अगर रेडियस a है, यहाँ पे रेडियस a थी ना, तो म्यू नॉट एन आई ओवर 2a, अगर हमारे पास रेडियस r हो तो म्यू नॉट एन आई ओवर 2r। सेंटर वाला केस तो भी हमने किया था, साइन को 90 डिग्री पुट करके और dl को 2 पाई a पुट करके, तो एक्सिस से भी हम सेंटर का फाइंड आउट कर सकते हैं, अंडरस्टूड, ठीक है। और यहाँ पे और क्या कर सकते हो, अगर हम यहाँ से एरिया, अगर हम यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लें, यानी कि इफ वी टुक दिस एरिया की जगह अगर हम पाई आर स्क्वायर पुट करें तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ साइड्स बाय पाई, ऊपर पाई कर पुट कर दिया, ये ए स्क्वायर है, ठीक है, पाई ए स्क्वायर एरिया, और नीचे पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा विद ए क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट एट द एक्सिस, एक्सिस पे कितना आया था म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाय 2r क्यूब या 2a क्यूब, ठीक है। अगर r बहुत ज्यादा है तो वी नेग्लेक्ट a, r बहुत दूर है तो उसके कंपैरिजन में जो रेडियस है दैट इज वेरी स्मॉल, तो यहां से हम a को नेग्लेक्ट कर देंगे। थर्ड केस, अगर हमारा r और a जो रेडियस है सर्कुलर लूप की और जिस डिस्टेंस दूर हमें फाइंड करना है r, अगर दोनों इक्वल हो तो कितना हो जाएगा, r की जगह भी a पुट कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 2a रेज टू द पावर 5/2, ठीक है। सो दीज आर सम स्पेशल केसेस। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन, सॉल्व इट बेटे। द प्लेन ऑफ अ सर्कुलर कॉइल इज हॉरिजॉन्टल, इट हैज 10 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितना गिवन है हमें 10, each of radius r is 8 centimeter converted into meter,
8 into 10 raised to the power minus 2 meter. A current of 2 amperes. Current of 2 amperes flows through it. The current appears to flow clockwise. Clockwise flow कर रहा है circular loop में from a point above the coil. Find the magnitude and the direction of the magnetic field at the center of the coil due to current. अभी हमने फॉर्मूला किया है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल. कितना था बेटे मैग्नेटिक फील्ड? B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r. अगर रेडियस r है, अगर रेडियस a है तो 2a कंसिडर कर सकते हो. पुटिंग ऑल द वैल्यूज, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी? 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7. ठीक है. n number of turns 10. Current we have 2 ampere upon 2 into r is 8 into 10 raised to the power -2. ठीक है. By solving it 2 it will be 2 pi. ठीक है. Here we have 4. ठीक है. This will be cancel out, it's 2. It will be cancel out, it's 5. So what we have? 5 into 5 into 10 raised to power कितना आया? -5. ठीक है. B इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 रेज टू पावर -5 टेस्ला. ये इसको 2 से ना कैंसिल आउट करके इट्स 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर -5 टेस्ला भी कर सकते हो. ठीक है. हाँ, द वैल्यू ऑफ पाई लेफ्ट ना. ठीक है. तो इट्स बीइंग 5 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -5 टेस्ला. यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ pi. ठीक है. So what we have seen here बेटे, magnetic field. What is the relation of magnetic field with distance r? क्या distance रहा है? Distance के साथ magnetic field का क्या relation रहा है? If we talk about at the center of the circular coil, कितना distance रहा है? Center of circular coil में भी और straight wire के केस में भी. मानसी, what is the relation of magnetic field with distance in case of circular loop, whether we talk about axis, whether we talk about at the center of the circular coil, या whether we talk about the finite and the infinite wire carrying current? क्या relation रहा है? We have written all the formulas ना. अगर हम वायर की बात करें, इनफाइनाइट वायर या फाइनाइट वायर की बात करें, B has an inverse relation with R. Right ना बेटे? Here also, look at here बेटे, B has an inverse relation with R. Also here B has an inverse relation with R. Here also, ठीक है, and here also. यानी कि सेंटर के केस में देख लो या लॉन्ग वायर के फाइनाइट और इनफाइनाइट के केस में, सब में मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R. ठीक है. नाउ टेल मी, if we have a magnetic field, due to straight, yes, due to straight current carrying conductor, due to straight current carrying conductor is 2 into 10 raised to power -4 Tesla. Muskan, tell me. ठीक है. If this conductor is
r distance away from P point, right? So if r is increased, if r is twice, then find the magnetic field in this case. Yes bete, we have a straight wire या straight current carrying conductor, ठीक है? There is a P point which is r distance apart from each other. Due to this current carrying element which is r distance apart from a point P, यहाँ पे P point पे magnetic field कितना है? It's 2 into 10 raised to power minus 4 टेस्ला. अगर इस डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? टेल मी. You have to answer this question. अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां से r डिस्टेंस अपार्ट पे 2 into 10 raised to power minus 4 टेस्ला है, then if we twice this distance, अगर हम इस डिस्टेंस को डबल कर दें, यानी कि P पॉइंट अब यहां हो जाए, ठीक है, 2r हो जाए डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, देन नाउ एट दिस पॉइंट P डैश मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? यस, ठीक है. आई टोल्ड यू कि B हैज अ इनवर्स रिलेशन विद R. अगर आपने R को ट्वाइस कर दिया, यू कैन सॉल्व दिस बाय टेकिंग द रेशो, या बिना रेशो, अगर MCQ है तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो. अगर हमने डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. अगर आप इसको 2 फैक्टर से इंक्रीज कर रहे हो, यानी कि यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना रह जाएगा? हाफ, ठीक है, हाफ रह गया. मीन्स मैग्नेटिक फील्ड पहले है 2 into 10 raised to power minus 4, अब हाफ रह गया, यानी कि 10 raised to power minus 4. अगर इसको पूरा एक्सप्लेन करना है तो बाय टेकिंग द रेशियो वी कैन सॉल्व दिस, कि बी यू हैव टू ओनली शो कि जिन जिन चीज़ों के बीच में रिलेशन बताया गया, पूछा गया है, ठीक है, तो आपको वही चीज़ें कंसिडर करनी है. तो इट हैज़ अ इनवर्स रिलेशन. अगर हम बी डैश की बात करें, बाय जब डिस्टेंस कितना हो गया था? डबल हो गया था. डिवाइड दीज टू, वी हैव टू फाइंड बी डैश. सो बी डैश अपॉन बी इज इक्वल्स टू, इट्स बीइंग 2r into r, r will be cancel out with r, so b dash is equals to b upon 2, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो गया. by putting the value of magnetic field upon 2. So magnetic field when the distance is twice, it's being 10 raised to power minus 4 टेस्ला. ठीक है, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं by taking the ratio. Understood? So what we have completed today? What we have discussed? Magnetic field, that remaining applications of Wyatt-Sabat law, कि the magnetic field at the center of the circular loop या circular current carrying conductor and at the axis of the current carrying conductor. ठीक है? In tomorrow's class we discuss about Ampere's circular law and its applications, solenoid and toroid and all those things. So we ended today's lecture here.